Greetings for today. I'm Preet Raman from Beautiful Spotlight Skin Team. I'm sure all of you must be keeping good health. We all know taking good care of your skin is important for more than just your appearance. As the largest organ, your skin becomes the most essential to your overall health. If you take care of it, it can help take care of you. This is the why it is so important to have a well thought out skincare healthy routine. It is pretty well known fact that you will feel better when you look better. Having a daily skincare routine helps you to look your best and put your best foot forward when you go out into the world. In today's busy world, cosmetic products are an integral part of daily lifestyle. But are they healthy for your skin? There are some myths of skincare that needs to be clear by experts. Let's connect today with our skincare expert, Dr. Priyanka Sudaria, live with us. Hello, ma'am. Hello. Firstly, Dr. Priyanka Sudaria, live from Rajkot, to enlighten us on the topic of myths and facts of skincare routine. Dr. Priyanka is a trained cosmetic dermatologist. She has honed her skin by practicing in setups such as Apollo, VSCC, Manipal Hospital, right? She is an expert in advanced skincare, lasers, and surgical since from 18 years. She completed her graduation from the Parmukh Swami Medical College. Basically, I'm practicing since almost 18 years now. I have been taking care of your skin for almost 18 years. I've practiced in multiple clinics, in multiple setups. So, all type of skin types, professionals, non-professional, housewives. So I've gone through all that in my years of experience. I'm doing almost Hmm. all the available treatments, what is there in India, whether it's lasers, whether it is facelifts, injectables, everything. So, right from basic skincare to any myths you can ask us. And before I start, the most important message what I want to give to all my viewers is whenever you are going to a skin specialist, just check the degree first. The skin specialist has to be an IDVL member. So it's Indian Association of Dermatologists. So always before going to a skin specialist for any treatment, just check the degrees of the doctor. The person has to be a qualified MD or DVD by IITVL. So that there we start at this note. Right, right. So there are few myths and facts about the skincare routine. I will read them for you one by one. And first, you please let the audience know if it is fact or a myth. And then Sure. anything you want to add for that. First myth is minimalist Yeah, sure. skincare routine is best. What is your take? Yeah. See, what has happened, we of course need a certain amount of products like cleansing, toning, moisturizing, and sunscreen, and a night repair. But now with the, seeing online and seeing on Insta or FB, what people are doing, they're putting everything. Like they'll put retinol also, they'll put vitamin C also, they'll put salicylic acid also. So you should not cocktail the products unless and until a dermat tells you to do that. So a minimum skincare routine is always best, which comprises of cleanser, that's a face wash, a toner if you want, moisturizer according to your skin type, sunscreen in the morning, and a night cream at night. So that is the minimal skincare, which is always good to follow. Okay, okay. Second is drinking water keeps your skin hydrated. Fact or myth? What is your take on this? It's of course a fact. Drinking water is always better because see, skin is the mirror of your body. So the more hydrated, the more cleansed is your body. So it is better. Some people, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि I'll speak in Hindi also because lot of people may understand Hindi more. कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को पानी का टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, सो हम उनको क्या बोलते हैं, आप पुदीने की लीव्स है, थोड़ा सा नींबू है, इन्फ्यूज्ड वाटर जो बोलते हैं. सो अ डेली टेक ऑफ 2 to 3 liter of liquid is good, which could be in the form of छाछ, juices without sugar and water. But हाँ, पानी पीना is compulsory to detox your body and give you a glowing skin.
ओके ओके। और नेक्स्ट इज कि जैसे कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे अपनी स्किन केयर के लिए अप्लाई करते हैं, लाइक टोनर, मॉइस्चराइजर्स का या फिर सनस्क्रीन। सो जो ऑर्डर है इसका, वो मैटर करता है या फिर नहीं? प्रॉपर स्किन केयर प्रोडक्ट का, लाइक या ऑफ टोनर हो कोर्स गया, हम मॉइस्चराइजर हो उसको, गया। हाँ, उसमें दो चीजें होती हैं, सी टी एम एस, ऐसे उसको याद रखने का, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन, सी टी एम एस। उसमें दो चीजें हम्म। इंपॉर्टेंट होती है, एक तो उसका ऑर्डर, सेकंड कंपनी। जनरली हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि सारे प्रोडक्ट्स प्रेफरेबली एक ही ब्रांड के यूज करिए, इट गिव्स यू बेटर रिजल्ट्स। सो सी टी ओके एम एस, क्लेंजिंग टोनिक मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन, और रात को क्लेंजिंग टोनिंग एंड नाइट रिपेयर। ओके। सो अभी सनस्क्रीन पर आ जाते हैं, जो मस्ट बोला जाता है ना? तो कई लोग ये भी कहते हैं कि मॉनसून या फिर विंटर्स में सनस्क्रीन की जरूरत नहीं होती, तो क्या कहना चाहोगे आप इस पे? See, very good question. Sunscreen is about using the about the sun protection factor. धूप का मतलब यूवी रेस का क्लाइमेट से कोई लेना देना नहीं है, 45 डिग्री हो या -4 डिग्री हो, तो जो यूवी रेस है वो इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो हम्म एक्चुअली हम लोग ये बोलते हैं जब आप पहाड़ पे जा रहे हैं, आप हाइट पे जा रहे हैं, तो वहां सनबर्न ज्यादा होता है, जबकि वहां माइनस में टेम्परेचर है। सो बेसिकली हम्म। वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम यूवी रेज, नॉट टेम्परेचर इन डिग्रीज। तो सनस्क्रीन आप हम्म। इंडोर हो, आउटडोर हो, आप पहाड़ पे हो, आप बीच पे हो, आप घर के अंदर हो, बारिश हो, यू हैव टू यूज अ सनस्क्रीन। सो राइट फ्रॉम 15, एक्चुअली 30 एसपीएफ टू 50 एसपीएफ इज गुड फॉर इंडियन स्किन। ओके ओके। और ये भी कहा जाता है कि अल्ट्रा हाई एसपीएफ रेटिंग सनस्क्रीन जो होता है वो आपकी स्किन को ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, राइट? यस, यस। सी, एसपीएफ जी। आपको जैसे बोला था, 30 to 50 इज वेरी गुड फॉर इंडियन स्किन। 50 के ऊपर ओके। किनको चाहिए होता है, कोई जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है या किसी का सिविल इंजीनियर्स टाइप है जो पूरा धूप में रहते हैं। सो बेसिकली सन हम्म। प्रोटेक्शन फैक्टर का मतलब होता है कि आपको इतना जो क्रीम है, जो आप वन फिंगर टिप क्रीम है, वो आपको कितने हम्म। घंटे प्रोटेक्ट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि ओके। अगर आप 100 या 90 लगाएंगे तो हम्म। फिजिकली फ्रीक्वेंसी कम होती है, जैसे 100 या 90 लगाएंगे तो वो 6 से 8 घंटे प्रोटेक्ट करेगा, 50 वाला 4 घंटे प्रोटेक्ट करेगा, 30 वाला 2 घंटे प्रोटेक्ट करेगा इन सीवियर सन एक्सपोजर। सो एसपीएफ का मतलब वो होता है। सो अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन आप डिसाइड करते हो आपको कौन सा सनस्क्रीन करना है। ओके ओके। सो नेक्स्ट इज कि अगर हम डेली रूटीन में सनस्क्रीन को यूज करते हैं, तो क्या ये विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है इससे कम हो जाती है? नहीं, सी इट्स अगेन अ मिथ। ओके। देखिए, विटामिन डी जनरली ये सजेस्ट किया जाता है कि जो अर्ली मॉर्निंग का जो सन एक्सपोजर होता है फॉर 5 to 10 मिनट्स, दैट इज इम्पोर्टेंट, पहली बात। दूसरी बात, हम्म वाइट सनस्क्रीन लगाने से विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, इट्स अ मिथ। तो ऐसा नहीं होता, और हमने विटामिन डी एनहांसमेंट के लिए हमें 5 या 10 मिनट ही सन लेना है, हम तो पूरा दिन 12 घंटे 10 घंटे वॉट एवर बाहर है। सो वी आर, हम्म। जैसे सुबह आप 6 7 बजे 8 बजे जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तब आप सनस्क्रीन मत लगाइए अर्ली मॉर्निंग्स, बट आफ्टर 8 हम्म। AM यू शुड अप्लाई सनस्क्रीन। ओके ओके। नेक्स्ट मिथ और फैक्ट, यू मस्ट स्क्रब हार्ड टू गेट रीड ऑफ द ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। या सॉरी, सी बेसिकली ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स क्या होता है, जो अपना स्किन होता है उसमें पोर्स रहते हैं विच इज हम्म ऑलमोस्ट हाफ अ सेंटीमीटर डीप। तो ब्लैक हेड व्हाइट हम्म हेड वो भर जाने की, सीबम भरने की वजह से वो पोर्स बनते हैं। तो अगर उसको हम्म दबाते हैं या स्क्रब करते हैं तो सिर्फ ऊपर का थोड़ा सा निकलता है, नीचे वो एज इट इज रहता है। एंड उल्टा कभी हम्म कभी दबाने से वो फट जाता है, न्यू मेक होल्स। आपने देखा होगा बहुत लोगों की नाक पे छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं। सो कभी भी हम्म। ब्लैक हेड व्हाइट हेड को स्क्रब या दबाने से नहीं करते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट होता है, उसको पॉलिशिंग बोलते हैं। उससे वो वैक्यूम हम्म से निकाला जाता है। यस, हम्म यू हैव टू डू इट एवरी वंस अ मंथ। आपको स्क्रबिंग करना है आप कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन वंस अ वीक। हफ्ते में एक बार से हम्म। ज्यादा स्क्रबिंग मत करिएगा, विद अ जेंटल स्क्रब। ओके ओके। अब हार्ड स्क्रबिंग तो नहीं करना चाहिए ना? जितना हाँ, जैसे एप्रिकॉट हो गया, वॉलनट हो गया, बेसिकली वो बॉडी के लिए होता है। तो हम्म फेस के लिए हम वो वाला स्क्रब करते हैं, या तो जो मेल्ट हो जाते हैं, या बहुत मतलब अपने को लगना नहीं चाहिए। इट शुड नॉट बर्न योर स्किन, इट शुड बी वेरी माइल्ड, वेरी जेंटल। ओके ओके।
ओके। नेक्स्ट इज कि अगर आपका ऑयली स्किन है तो आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ती। मिथ और फैक्ट? इट्स अ मिथ। ओके। मॉइस्चराइजर और क्रीम दो अलग चीजें हैं। मॉइस्चराइजर यानी हम्म। आपके स्किन में पानी का लेवल, हाइड्रेशन, और हम्म। क्रीम यानी जो क्रीम होता है जो ड्राई स्किन वाले लगाते हैं। तो ऑयली स्किन हम्म। वालों के फेस को भी मॉइस्चराइजिंग चाहिए होता है। फर्क क्या हम्म। होता है, हम उसमें जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, नॉट क्रीम। उनको क्रीम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बेस उनका, ओके। उनको वाटर बेस्ड हाइल्यूरोनिक सीरम है। सो इट्स हम्म। हाइड्रेटिंग, हम्म। वो पानी जैसा होता है, उसको लगा लीजिए, वो हाइड्रेट हो जाता है, वो स्टिकी नहीं होता है। सो हाइड्रेशन हम्म। चाहिए होता है। ओके। सो नेक्स्ट इज मिथ और फैक्ट, एंटीबैक्टीरियल सोप इज बेस्ट फॉर द कीपिंग योर स्किन क्लीन। सो बहुत सारे लोग एंटीबैक्टीरियल सोप यूज करते हैं अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए। अगेन इट्स अ मिथ। एंटी से अपने बॉडी पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया या फंगस होते हैं जो नेचुरली रहने चाहिए। कभी कभी हम्म। जैसे कहीं बाहर से बच्चे खेल के आए, आपने हैंड वॉश वगैरह कर लिया, वंस अ वीक आपने एंटीबैक्टीरियल बाथ ले लिया, और सैलिसिलिक इज बेटर, वो बेटर है। लेकिन जब हम डेली हम्म। बेस में बहुत एंटीबैक्टीरियल यूज करते हैं, तो कभी कभी जो चाहिए होता है गुड बैक्टीरिया, वो भी वाइप ऑफ हो जाता है, तो बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सो इट्स नॉट अ वेरी गुड। यू कैन गो फॉर नीम सोप्स, यू कैन गो फॉर सैलिसिलिक सोप्स टू कीप इट क्लीन, और वंस अ वीक बॉडी स्क्रब। ओके ओके। सो कुछ ऑडियंस के क्वेश्चंस भी हमारे तक पहुंच रहे हैं। सो ऑडियंस जी, पूछना चाहती है कि कुछ ऐसी हैबिट्स और बिहेवियर्स जो मैं अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करूं फॉर द हेल्दी स्किन। ऑफ कोर्स। लाइक हम लोग सब पेशेंट्स को वही काउंसिल करते हैं कि सिर्फ क्रीम लगाने से या विटामिन खाने से ग्लो नहीं होता है। 5 चीजें होती है हम्म। बेसिकली: आपका डाइट, आपकी एक्सरसाइज पैटर्न, हम्म। आपका स्ट्रेस लेवल, हम्म। आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं कि नहीं, आपका यही हम्म। वाटर इनटेक एंड क्रीम। सो बेसिकली हम्म। जो प्रोडक्ट्स का जो पार्ट होता है वो 15 से 20, आप अ, किस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं उससे 100% आपके स्किन पे इफेक्ट दिखता है। स्लीप साइकिल हो गया, डाइट हो गया, जैसे हमने अभी पानी की हम्म। बात करी, फ्रूट्स इंटेक हो गया। इंडिया में ज्यादातर लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो ओमेगा बहुत घटता है। लाइक गुजरात में हम लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं। सो फिर हम लोग बोलते हैं कि हम्म। नट्स ऐड करिए, ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह, हम्म। तो ओमेगा से स्किन बहुत हेल्दी रहता है। सो ऑफ कोर्स डाइट, राइट। स्लीप, एक्सरसाइज एंड मेडिसिन और प्रोडक्ट्स। ओके ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑडियंस की तरफ से पूछा गया है, हाउ कैन आई प्रिवेंट एंड एड्रेस कॉमन स्किन केयर कंसर्न लाइक ड्राइनेस, ऑयलीनेस और अनइवन स्किन टोन? वो ओके। सो बेसिकली आपको आपके स्किन टाइप के हिसाब से, एक तो ये ही डाइट हम्म। वगैरह में जो एडजस्ट करें, जैसे आपका ड्राई स्किन है तो आपको ओमेगा ज्यादा लेना है, ऑयली स्किन है तो आपको विटामिन सी ज्यादा लेना है, दैट यू कैन कंसल्ट अ डाइटिशियन एंड मेक अ डाइट। प्रोडक्ट्स में मेथड वो ही रहेगा, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन, बट आपके प्रोडक्ट्स उस हिसाब से हो जाएंगे। जैसे किसी का बहुत ऑयली स्किन है तो हम एएचए, बीएचए, नियासिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड हम वो यूज करेंगे। किसी का ड्राई स्किन है तो हम हाइल्यूरोनिक, विटामिन सी ऐड कर देंगे, एंड प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे। सो बेसिकली वो आपका एक स्किन केयर रेजिम आपको बनाना पड़ता है आपके स्किन टाइप के हिसाब से, टू कीप इट हेल्दियर। ओके ओके। सो नेक्स्ट अभिषेक का क्वेश्चन है, आर देयर एनी लाइफस्टाइल चेंजेस आई कैन मेक टू इम्प्रूव माय स्किन हेल्थ? या आई हैड ऑलरेडी सेड दैट, बट टू स्पेसिफाई, जैसे स्लीप साइकिल होता है ना, उससे एक्ने का बहुत डायरेक्ट रिलेशन होता है पिंपल्स का। अभी क्या होता है, ओके। कभी आप रात को 10 बजे सो रहे हो, कभी आप 12 सो रहे हो, कभी आप 2 सो रहे हो, तो होता क्या कि आपकी हम्म। बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और रॉन्ग हॉर्मोन्स बनाती है, रॉन्ग सिग्नल्स देती है, जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स के एक्ने वगैरह हो जाता है। तो आप एक स्लीप साइकिल पे बहुत ध्यान दीजिए कि जैसे अगर हम्म। 12 बजे सोना है तो 12 ही सोना है, तो डोंट कंफ्यूज योर बॉडी। वन, दैट इज स्लीप साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हॉर्मोन्स प्रोडक्शन। सेकेंड इज ओके। एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज से जो टॉक्सिन रिलीज होता है, आपको जो हम्म। एक्सरसाइज पसंद है, ऐसा नहीं है कि महीने में 2 दिन जिम चले गए और फिर नहीं गए। जो भी हम्म। करिए उसको सस्टेन करिए। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो फिर आप उसको छोड़िए मत, मतलब जो आपसे होता है वो उसको मैनेज करिए। तो अ गुड हाफ एन आवर एक्सरसाइज, 1 आवर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बट हाफ एन आवर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप साइकिल, a good amount of curd
डाइट में ओके। दही, क्योंकि इट लैक्टिक एसिड होता है, वो फ्लश करता है बॉडी को अच्छे से। ड्राई फ्रूट्स, उसमें भी नट्स जो रहते हैं, सीड्स, जो अपन 7 सीड्स मिक्स बोलते हैं, हम्म। वो बहुत अच्छा रहता है। एंड ऑफ कोर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अपार्ट फ्रॉम द अपन रेगुलर जो फूड रहता है। Okay, okay. So next question, Pooja Shinde is asking, should I adjust my skincare routine seasonally? So या season के वेरी गुड क्वेश्चन। सी उसमें उसे दो चीजें में, एक तो आप कौन से एरिया में रह रहे हो। सपोज आप गुजरात टाइप ऑफ एरिया में हैं, तो यहाँ पे टेक्निकली हम 2 ही सीजन गिनते हैं, समर एंड विंटर, क्योंकि यहाँ इतना हम्म मानसून का इफेक्ट नहीं आता है। इफ यू आर इन अ हम्म बॉम्बे और कोस्टल काइंड ऑफ वेदर, तो आपको मानसून भी देखना पड़ता है। तो जनरली उसमें मेनली आपका जो चेंज होता है वो नाइट रिपेयर खास चेंज होता है, क्योंकि सनस्क्रीन बार बार चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सनस्क्रीन, टोनर, हम्म, क्लेंजर और नाइट रिपेयर आपको जनरली चेंज करना पड़ता है स्किन टाइप, क्लाइमेट के हिसाब से। जैसे समर्स में तो okay, थोड़ा अच्छा डीप क्लेंस करे वैसा प्रोडक्ट चाहिए, विंटर्स में जेंटल क्लेंजिंग चाहिए होता है। यस, बट okay, यू हैव टू okay. चेंज। So next, Swastik is asking, how can I address specific skincare concern like acne, aging, or hyperpigmentation? सी, आपको उसके लिए स्पेसिफिकली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि सी इंडिया में रहने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यू कैन जस्ट बुक एन अपॉइंटमेंट एंड सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। आपको यूएस में अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी 6 महीने लग जाते हैं, Right. एंड इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगाओ, हैरान हो, क्योंकि मैं वो रोज देखती हूँ, Hmm. इतने सारे प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, देन वी थ्रो इट अवे। सो आप Right. डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके, Hmm. खाली प्रोडक्ट लगाने से नहीं होता है। आपको कुछ और प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ B12 आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, हार्मोनल चेंजेस नहीं, वो सब डॉक्टर डिसाइड करेंगे। सो यू कैन नॉट एड्रेस इट बाय योर ओन। Okay, okay. So next, Roshni is asking, is it okay to use makeup on a daily basis? And are there any precautions I should take? ओके, सी, यू कैन ऑफ कोर्स यूज मेकअप ऑन डेली बेसिस। आई लाइक मेकअप, बट बेसिकली क्या, दो चीजें कि आप बहुत मतलब जैसे आप जो ब्रांड्स ले रहे हैं, ट्राई टू गो फॉर गुड Hmm. ब्रांड्स, वन। दूसरा, Hmm. मेकअप रिमूवर खाली फेस वॉश से मेकअप मत निकालिए, आप प्रॉपर मेकअप जो मिसिलर वाटर आता है उससे ही रिमूव करिए मेकअप। एंड जो Okay. लिप जो पाउडर बेस्ड मेकअप होता है वो हमेशा बेटर होता है, वो लाइट होता है। मतलब मूज या Hmm. कुछ भी, Hmm. जैसे अपन आई शेडो लगा रहे हैं, तो क्रीमी की जगह यू बेटर गो फॉर द पाउडर बेस्ड मेकअप्स। सो वो थोड़ा बेटर रहता है। एंड मेकअप का भी उसका रेजिम क्या रहता है, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और क्लेंजिंग टोनिंग सीरम, एंड देन पुट योर मेकअप। अभी बहुत अच्छे टिंटेड सनस्क्रीन्स मिलते हैं मार्केट में, मेडिकेटेड। टिंटेड मीन्स Hmm. विद फाउंडेशन मेकअप बेस, तो दे आर मच मोर बेटर देन द बीबी क्रीम्स। तो उनसे पोर ब्लॉकिंग या पिंपल्स वगैरह के चांस काफी कम रहते हैं, रादर देन द रेगुलर फाउंडेशन। फाउंडेशन रेगुलर बेस पे हम लोग ना बोलते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली पिगमेंट डिपॉजिट होता है। बट लिपस्टिक, Hmm. लाइनर, आई शेडो on a powder base is okay, and a light lipstick. Okay, okay. So next, Sonia is asking कि uh, मुझे अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए. जैसे कुछ लोग स्क्रबिंग बहुत ज्यादा करते हैं, रोज स्क्रब करते Hmm. हैं, वो नहीं करना चाहिए। मिक्सिंग ऑफ Hmm. प्रोडक्ट्स नहीं करने चाहिए। सुबह सैलिसिलिक लगा रहे हो और रात को रेटिनॉल लगा रहे हो, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि किसके साथ क्या मैच, मतलब ओवर यूज नहीं करना चाहिए प्रोडक्ट को। Hmm. ओवर फेस वॉश नहीं करना चाहिए। जैसे ऑयली स्किन वालों को क्या होता है, हर 2 घंटे बाद पानी से मुंह धो लेते हैं, नेवर डू दैट। अब जितना Right. पानी से खाली मुंह धोंगे आपको और प्रॉब्लम होगा। सो Hmm. 3 टाइम्स अ डे फेस वॉश विद अ गुड क्लेंजर इज इनफ। तो वो आपको एक बेसिक स्किन केयर रेजिम को ही फॉलो करना चाहिए, ओवर नहीं करना चाहिए। Okay. So next, Minal is asking, can you recommend any natural or DIY skincare remedies? ओके, सी, होममेड, जैसे हमने कोई भी यूज किया, जैसे हमने ऑरेंज पल्प किया, पपाया पल्प किया, हनी किया, आपकी स्किन टाइप Hmm. ओट्स किया, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। खाली उसमें इतना याद रखिए, वंस यू फिनिश योर स्क्रबिंग और पैक, फूड आइटम्स जब हम यूज कर रहे हैं उसके बाद हमेशा रोज वाटर या टोनर से क्लीन करो। बहुत बार क्या Okay. होता है कि फूड आइटम्स वो ठीक से क्लीन नहीं होते और उसकी वजह से पिंपल हो जाते हैं।
तो एक रूल ऑफ थंब ये होता है कि आप कोई भी फूड आइटम्स पैक या कुछ करो, इवन पैक भी कर रहे हैं, हमने बेसन का पैक लगाया या हल्दी का लगाया, पानी से धो के उसको टोन करो, आप देखना उसके बाद आपको उसमें पार्टिकल्स दिखेंगे. So according to your skin type, like orange, you can use orange is orange pulp. You can use papaya is very nice. But फिर वो skin type के हिसाब से होगा. Potato pulp, it is again very good for oily skins, and for the drier skin, oats हो गया, ये सब हो गया, वो अच्छे products रहते हैं according to your skin type. Okay, okay. Next, is it safe to use retinols in my skincare routine? Retinol is a very good product, but उसमें ना थोड़ा सा वो tricky product है. एक रेटिनॉल की बहुत स्ट्रेंथ्स है मार्केट में अवेलेबल, दूसरा रेटिनॉल के बहुत टाइप्स हैं. तो रेटिनॉल एक तो रात को ही लगाया जाता है, पहली बात. दूसरा, वो कोई प्रेगनेंसी प्लान वगैरह कर रहा हो तब नहीं लगाना होता है. और कुछ लोगों को रेटिनॉल से सेंसिटिविटी हो जाती है, या यू कैन नॉट यूज इट व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी. और कुछ लोगों को रेटिनॉल से सेंसिटिविटी हो जाती है, यहाँ पे ड्राई या क्रैक्स होने लग जाते हैं, पिंपल्स निकलने लग जाते हैं. सो गो फॉर अ वेरी लो स्ट्रेंथ रेटिनॉल एंड देन उसको अपग्रेड करिए, डायरेक्ट 0.1 नहीं लगाइए. एंड गुड ब्रांड्स, गो फॉर गुड ब्रांड्स. ओके ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया है, what SPF level should I look for in a sunscreen? I have oily skin and have pimples in my face. ऑयली स्किन से एसपीएफ में फर्क नहीं पड़ेगा, बट यस यू कैन गो फॉर 30 to 50 मैटिफाइंग ऑयल कंट्रोल सनस्क्रीन्स आते हैं. सो आप जब Okay. सनस्क्रीन खरीद रहे हैं उसके ऊपर ना लिखा रहता है प्रोडक्ट के ऊपर नॉन कोमेडोजेनिक, मैटिफाइंग ऑयल कंट्रोल या हाइड्रेटिंग, जैसे ड्राई स्किन वालों के लिए हाइड्रेटिंग. तो आप ऑयल कंट्रोल सनस्क्रीन ले सकते हैं, जेल बेस्ड ले सकते हैं, वाटर बेस्ड सनस्क्रीन ले सकते हैं. Okay, okay. So next, how often should I exfoliate? Exfoliate कितना मुझे रेगुलर कितना को करना चाहिए? हाँ, मैंने वो ऑलरेडी बताया था कि वंस अ वीक एक्सफोलिएशन विद अ जेंटल स्क्रब विच डजंट हर्ट ऑन योर स्किन, वो बहुत हो गया. प्रेफरेबली इवनिंग में करने का, मतलब एक्सफोलिएट करने के बाद धूप में नहीं चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन या रेडनेस देता है. एंड एक्सफोलिएट करने के बाद उसको टोनर और सम नियासिनामाइड और हाइलुरोनिक सीरम से उसको सूद करना चाहिए. सो वंस अ वीक इज मोर देन इनफ. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑडियंस की तरफ से आया है कि जैसे हम भी देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे सनस्क्रीन्स हैं, बहुत सब दावा यही करते हैं कि ये हमारा सनस्क्रीन बेस्ट है. तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि कौन सा सनस्क्रीन स्किन के लिए बेस्ट रहेगा? सी वी हम लोग यहाँ ब्रांड्स नहीं डिस्कस कर सकते, बट कोई भी एक कंपनी जैसे आप पिक करते हैं, आप उसका पोर्टफोलियो देखिए, क्योंकि वो आपको स्कीम दे रहा है, नया लॉन्च है, मत लीजिए. आप उसका बैकअप देखिए, वो आपको क्या क्या प्रोटेक्शन दे रहा है वो देखिए. वो खाली यूवीए, यूवीबी, इंफ्रारेड, अभी वो तीसरा आता है जो कॉर्पोरेट वाले होते हैं, जो पूरा दिन लाइट इसमें रहते हैं, ट्यूब लाइट्स और कंप्यूटर में रहते हैं, उनके लिए आईआर सनस्क्रीन होता है. सो आपको ये देखना है, तो कंपनी पोर्टफोलियो जैसे हम लोग कैसे देते हैं व्हेन वी आर इवन बाइंग क्लोथ्स, उसके लिए तो आपको यूवी प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपको यूवी बी मिल रहा है, कि फिजिकल सनस्क्रीन खाली है कि इंफ्रारेड है. और फिर आपको बेस देखना पड़ता है उसका कि आपकी स्किन टाइप को सूट कर रहा है कि नहीं. उसमें लिखा ही रहेगा अच्छे ब्रांड्स में, जैसे मैंने पहले बोला हाइड्रेटिंग, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, तो वो आपको ऐसे लेना पड़ेगा सनस्क्रीन. बिकॉज ब्रांड्स अगर मैं बताऊंगी भी, वो तो आपका अलग हो जाएगा, मेरा अलग हो जाएगा. सो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस. ओके ओके. सो डॉक्टर, मैं ड्राई स्किन वालों के लिए कोई टिप्स लेना चाहूंगी आपसे. कुछ क्योंकि बहुत ड्राई, खास करके चाहे विंटर्स में, अभी तो समर्स में भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्किन बहुत ड्राई रहती है. ड्राई स्किन, यू आर एब्सोल्युटली राइट. और वही अगेन मिथ हुआ कि समर में स्किन ड्राई नहीं होती. एक्चुअली जब हम लोग अभी एसी में रहते हैं ना, स्किन ज्यादा ड्राई होती है. सो बेसिकली एसी, इंडियन एसीज में ह्यूमिडिफायर्स नहीं होते हैं, तो आप देखो एसी के बाहर पानी टपकते रहता है. सो बेसिकली इट पुल्स द मॉइस्चर आउट, तो यू फील यहाँ पे पूरा ड्राई होने लग जाता है. सो फेस के लिए एनीथिंग विद लाइट हाइल्यूरोनिक इज ऑलवेज गुड. हाइल्यूरोनिक सीरम्स बहुत इजीली अवेलेबल है, अच्छे ब्रांड्स, 2%, 5%, मसाज करके यू कैन जस्ट यूज इट फॉर हाइड्रेशन. और अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर. सेकेंड, लॉट ऑफ वाटर, पानी पीना. थर्ड, ओमेगा.
ओमेगा, विटामिन ई, वो सब बॉडी को काफी अच्छे से प्लम्पी और हाइड्रेटेड रखते हैं. And of course, you can ask your dermatologist for treatments for hydration. ओके ओके. सो डॉक्टर, आज के टाइम में अगर देखा जाए, चाहे वो स्किन केयर प्रॉब्लम्स है या फिर वैसे हेल्थ इश्यूज है, सो आई थिंक स्ट्रेस जो है वो मेन पार्ट बन गया है लाइफ का. सो मैं आपसे कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स लेना चाहूंगी फॉर बेटर स्किन. Actually, see, like I said, a good, मैंने वो स्टार्टिंग वहीं से किया था कि a good half hour to 1 hour exercise, 10 to 15 minutes of whatever form of meditation you like, whether it's music, whether it is whatever. So a good meditation, a proper sleep cycle, ये एक स्ट्रेस मैनेजमेंट से. हम लोग सब वर्किंग है, हम अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हम रोज 2 घंटे योगा कर रहे हैं, वो कोई नहीं कर सकता. वी हैव टू बी प्रैक्टिकल. तो बेसिकली ये सब स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स हैं, और सारे लोग वो बोलते हैं डोंट यूज योर मोबाइल बिफोर गोइंग टू स्लीप एंड ऑल दैट. सो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट. ओके. You can have सो a glass of milk going to sleep. That again calms your mind. ओके ओके. सो नेक्स्ट मैं बैक सनस्क्रीन पे ही आना चाहूंगी कि सनस्क्रीन ये नेसेसरी है कि हम सनस्क्रीन को रात को भी लगाकर सोएं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इवनिंग में भी लगाना चाहिए सनस्क्रीन. इवनिंग में बेसिकली फंडा ये है कि जैसे अगर जब तक यूवी रेज है यानी 5-6 बजे तक हमने उसको 2 बार रीअप्लाई किया. अभी किसी का ऐसा वर्क है, जैसे आपका ही वर्क है कि आप बहुत ज्यादा लाइट्स में हो, कंटिन्यूस हैलोजन लाइट्स या जो भी लाइट्स बोलते हैं, देन यू कैन ऑफ कोर्स यूज, बिकॉज आप आर्टिफिशियल लाइट में हो. बट जो रेगुलर घर में रहते हैं उसमें इतना स्ट्रॉन्ग लाइटिंग इफेक्ट नहीं होता है, तो घर में लगाने की जरूरत नहीं है. सो ट्वाइस अ डे सनस्क्रीन एप्लीकेशन इज ओके फॉर रेगुलर पब्लिक. मॉर्निंग 8 AM, देन repeat around 2 or 3 PM. So that is enough. No need to apply at night. No, not needed. ओके ओके. सो नेक्स्ट आई वांट टू नो मिथ और फैक्ट. सब कहते हैं कि आपको फ्रीक्वेंटली अपना फेस वॉश करते ही रहना चाहिए, बैक टू बैक, कुछ कुछ टाइम बाद, 1-2 घंटे बाद फेस वॉश करते रहो. मैंने ऑलरेडी वो बताया आपको कि फेस वॉश मैक्सिमम 3 times a day, और कुछ जैसे बच्चे हैं बहुत ज्यादा बाहर जा रहे हैं तो 4. और जेंटल फेस वॉश से मुंह धोना चाहिए. ऐसा फेस वॉश यूज नहीं करना चाहिए कि फेस धो के ऐसे कड़क हो जाए, एकदम टाइट हो जाए. एक जेंटल क्लेंजर से 3 times a day इज मोर देन इनफ. खाली पानी से कभी फेस वॉश नहीं करना चाहिए, वो ज्यादा डैमेज करता है, क्योंकि वो जो भी डस्ट और ग्राइम है वो चिपक जाएगा. सो अ गुड जेंटल क्लेंजर 3 times a day बहुत हो गया. और हर बार फेस वॉश करके फिर आपको एटलीस्ट सीरम या मॉइस्चराइज करना है. लेडीज क्या करती हैं, बहुत कॉमन मैंने देखा है, फेस वॉश करके कुकिंग करने लग जाते हैं. एक ड्रॉप ऑफ कुछ भी मॉइस्चराइजर सीरम लगाइए, नहीं तो वो जितना जो धुआं आ रहा है या जो भी स्टीम आ रहा है वो फिर इसलिए व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स ज्यादा होते हैं, या कुछ भी पिंपल ज्यादा होता है. सो वो फेस वॉश करके उसको टोन कर देना चाहिए. Okay, okay. So next I wanna ask, myth or fact, you should start using anti-aging products in your youth itself. लोग अपनी तरफ से ही एड्स देख के कोई भी एंटी एजिंग प्रोडक्ट वो है यूज करना स्टार्ट कर देते हैं ना. सी बेसिकली एंटी एजिंग वर्ड वो थोड़ा वो हो गया. बेसिकली इट्स कॉल्ड नाइट रिपेयर. तो जैसे अगर एक हम स्कूल वाले बच्चे हो गए तो वो रात को हाथ पैर मुंह धो के दे जस्ट पुट अ मॉइस्चराइजर. वही चीज अगर 15-25 वाला कर रहे हैं, 15 to 25 एज ग्रुप, सो दे कैन यूज हाइलुरोनिक सीरम, विटामिन सी. अब आप उसको एंटी एजिंग बोल दो या नाइट रिपेयर बोल दो, एक्चुअल एंटी एजिंग जो चालू होता है वो 29-30 से स्टार्ट होता है. उसमें हम 3 सेट बोलते हैं, 30, 40, 50 प्लस. तो वो जनरली डॉक्टर स्किन टाइप देख के डिसाइड करता है. बट वहां पर हम लोग रेटिनॉल्स, पेप्टाइड्स, कोलेजन वो सब इंट्रोड्यूस करते हैं. सो टिल 30-28 इतना बहुत हो गया. मॉइस्चराइज एंड अ गुड हाइलुरोनिक विटामिन सी. ओके ओके. सो मैम, इस सेशन को क्लोज करने से पहले मैं चाहूंगी कि कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो शेयर करो आप ऑडियंस के साथ फॉर हेल्दी स्किन. यस श्योर. हम लोग वापस वहीं पे आ जाते हैं कि खाली क्रीम्स और प्रोडक्ट्स लगाने से नहीं होता है. आप आपकी पहला स्किन टाइप समझिए, एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके एक बार कंसल्ट करके आपका एक रेजिम बनवाइए अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेस लेवल, अकॉर्डिंग टू योर वेट, अकॉर्डिंग टू योर एज. बहुत चीजें होती है उसमें. इवन
आपका B12 आयरन लेवल कैसा है, हीमोग्लोबिन कैसा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप स्किन केयर बाय करने से पहले कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट. वन. सेकेंड, preferably do the cosmetic treatments with a qualified dermatologist. सलोन में क्योंकि वो सस्ते में हो रहा है, इसलिए पीलिंग और पीआरपी जाके सलोन्स में पार्लर्स में कर रहे हैं. दैट शुड नॉट बी डन. इफ डॉक्टर्स are meant to decide the medical treatment for you, so that is a very important message what I want to give. हम लोग बहुत burns होते हैं. So do the medical treatments by medical people, whether it is lasers or PRP or whatever. तो एक ये मेरा second message है. Third, don't use your friends products or your मतलब आपके siblings के, जैसे अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया तो चलो मैं भी वही लगा लेता हूँ. So don't Hmm. interchange and mix the products. हर एक की शायद ट्विंस होंगे ना तो भी उनके में थोड़ा बहुत चेंज होगा. So you have to Hmm. get your whole regime done by a doctor, and always go to a qualified dermatologist for your skincare issues. Okay, okay. So thank you, Dr. Priyanka Sudaria, for your valuable time. It has been quite an informative session for our viewers. We look forward for many more such sessions in coming days. So thank you so much. Thank you so much for inviting. Thank you so So much. thank you, viewers, for a excellent participation. For more information and updates on skin health and care, stay connected on our FB page, Beautiful Spotless Skin. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. So thank you. Good day to all.